ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಏನೆಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕ, ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ, ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ. आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सुरजेवाला साहब हैं हमारे बीच। इस हल्के के एमएलए रिजवान अरशद साहब भी मौजूद हैं, के एक मशहूर एमएलए यानी हारिस साहब शांतिनगर से भी आए हैं। हमारे चीफ विप सलीम साहब भी आए हैं, नागराज यादव भी आए हैं, कई लोग स्टेज पर थे। साए में असली जवानी पलती है, संघर्ष के साए में असली जवानी पलती है, इतिहास उधर झुक जाता है और जवानी चलती है, जवानी चलती है। ಇಂದಿನಾಗಿ ಪತ್ಯಾದ ಸಮಯ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರೇ, ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ರವರೇ, ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರು ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ರವರೇ, ಎಐಸಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಭಿಷೇಕ್, ಏನು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ರವರು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ, ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಜನಗಳ ಹಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಹಲವಾರು ಮುಖಂಡರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 140 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ, ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿವೆ. ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಂತ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾಯಕತ್ವ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನುಡಿದಂತೆ ನಾವು ನಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು, ದುಷ್ಟಾಚಾರ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 55 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, 100ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರುವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, 1000ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ತಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು 15 ಲಕ್ಷ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಇವತ್ತೇನೋ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ, ಅದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಹೇಳಂತ ಮಾತು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಯುವ ನಾಯಕರು ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಎಐಸಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳಿಂದ ತಾವು ಓಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, भाई नौजवान साथियों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा. थोड़े लोग तब मुझे छोड़े नहीं सिक्सर मारने को, लेकिन अभी किधर से भी सिक्सर हो सकता है. तो हमें आज डैश पर हमारे इंचार्ज, मेरा दोस्त, बड़े भाई सुरजेवाला जी है, और हमारे जमीर अहमद साहब है, मंसूर अली साहब है, सलीम अहमद, रिजवान अरशद, तमाम दोस्त लोग हैं स्टेज पर, जब्बार भाई, महरोज खान. मैं ज्यादा टाइम तो सबके नाम लेने पर नहीं लूंगा. मकसद इतना ही है, 2 दिन में वोटिंग है. वोटिंग का बरसात भी इधर से ही शुरू होना है. आप लोग जितना ज्यादा वोट डालेंगे उतना ही वोट ज्यादा हर जगह पे पड़ेगा. लेकिन वोट क्यों डालना है, किसको देना है, ये सब फैसला ऑलरेडी हो गया. हम लोग इंतजार डेट का है. इंशाअल्लाह मंसूर इस बार जीत रहे हैं.
सेंट्रल पार्लियामेंट हमें जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम सबको मालूम है कांग्रेस गवर्नमेंट जो भी गारंटी 10 साल से बराबर सबको मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है? 2000 रुपए बस में फ्री, करंट फ्री, सब कुछ वो तो हमें सबको मालूम भी है, लेकिन बीजेपी वालों को समझाना जरूरी है। 5 साल हुकूमत था, इधर कुछ नहीं करे, बस भी था, केएसआरटीसी भी था, पावर भी था, करंट भी था, फिर भी हमें नहीं दिए। दिए क्या? हमारे बहनों को बस में जाने को दिया? नहीं दिया। करंट फ्री दिया? नहीं दिया। कभी नहीं देते, क्योंकि वो लोग गरीबों को कुछ नहीं करते। हमारा कोशिश ये रहना है सेंट्रल में भी कांग्रेस का हुकूमत आना है, तो इधर से अगर आवाज उठेगा तो इंशाअल्लाह सेंट्रल में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, तो गारंटी डबल होगा। 2000 का गारंटी 24,000 मिलते हैं, तो 1 लाख का भी गारंटी है। चाहिए नहीं चाहिए हमें? 1 साल में 1 लाख रुपए का गारंटी आपको नहीं चाहिए? चाहिए बोलिए, जोर से बोलिए ना, जोराಗಿ ಮಾತಾಡಿ। ಯಾಕೆ ಶಬ್ದ ಬಂದ್ರೇನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಮಾತಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು। ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ। ಒಬೇದುಲ್ಲಾ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಚೆಂಬು ಕೊಟ್ರು ಅಂತ, ನಿಜ 15 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರೋ ಚೆಂಬು ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ। ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂತ ರಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವೋಟ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಚೆಂಬು ಕೇವಲ ಚೆಂಬಲ್ಲ, ತೂತಿರೋ ಚೆಂಬು, ಖಾಲಿ ಇರೋ ಚೆಂಬನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು। ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಗಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಳಿದಾಗೆ we all decide what we have to do, and the decision from here makes a big difference. It's not easy. Once you decide here, it spreads. Chowk is a chowk for the whole Bangalore city. We need to strengthen it. We need to stand together, and we need to hit it on the nail. And I'm sure we have a very good candidate, Mansoor Ali Khan, an youngster, educated, a hard-working person. We need to work together. We have to go united and see that he can get maximum vote. Shivaji Nagar has the potential to give maximum lead to Mansoor Ali Khan, and all the 8 constituencies in Central Parliament is going to give lead to him, including Madhevpura. We are going to get lead. There is no doubt about it. People have decided for assembly elections, and he continues to do that. He is a man who can vision it out and see something different can be done and deliver it to the people, which is very important. ಅಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, 5 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, 5 kg ಅಕ್ಕಿದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೇವಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ, नरेंद्र मोदी जी के आंख से आंख मिलाकर जो लीडर बात करते हैं राहुल गांधी, उस लीडर के सीधे हाथ तरफ एक चेहरा हमेशा नजर आता है, वो रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब का है। चाहिए तो यह है कि हमें उनको सुनना है, इसीलिए बहुत कम अल्फाज का इस्तेमाल करूंगा, बहुत कम वक्त का इस्तेमाल करूंगा।
2024 आ गया है। 26 तारीख को वोट डालने जा रहे हैं। फैसला करना है कि ये मुल्क इसके बाद किसका होगा। 26 तारीख को जो वोट होगा वो ये फैसला करेगा कि ये मुल्क गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद का रहेगा या मोदी, योगी और गोडसे का रहेगा। ये फैसला 26 तारीख को जब हिंदुस्तान की आवाम वोट डालने जाएगी उस दिन होने वाला है। 10 साल भारतीय जनता पार्टी को सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने इख्तिदार चलाया है। 10 साल से हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 10 साल हुकूमत चलाने के बाद तीसरी बार इख्तिदार पाने के लिए, फिर वापस पावर में आने के लिए नरेंद्र मोदी हमारे सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोस्त हमारे सामने आए हैं और होना तो यह चाहिए था कि वो हमें बताएं कि आपने इन 10 सालों में किया क्या है, क्योंकि आवाम जानना चाहती है नरेंद्र मोदी और बीजेपी से कि आपने इन 10 सालों में क्या किया हिंदुस्तान के लिए। लेकिन उल्टा सवाल नरेंद्र मोदी जी हमसे पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अरे इख्तिदार तुमने चलाया, वजीर आजम तुम रहे, तुम्हारी पार्टी पावर में रही, 10 साल तुम इख्तिदार में रहे। जवाब तुम्हें देना चाहिए कि तुमने क्या किया, और तुम हमें पूछ रहे हो कि हम क्या किए 70 सालों में। क्या कांग्रेस पार्टी 70 साल से पहले नहीं थी पावर में, इख्तिदार में? कांग्रेस पार्टी, इस मुल्क को आजाद कांग्रेस पार्टी ने कराया। इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन, आईन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जरिए कांग्रेस पार्टी ने दिया। इस मुल्क को जमहूरियत में तब्दील कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर हमने मुल्क को आजाद नहीं करवाया होता, बाबा साहेब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया होता, हमने जमहूरियत को बचाया नहीं होता, तो क्या आप आज वजीर आजम होते? आप नहीं हो पाते। इस मुल्क को हमने क्या किया ये तो बच्चा बच्चा जानता है। अगर आज पूरी दुनिया में ये मुल्क न्यूक्लियर मुल्क है तो इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तिदार रही। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान इमर्जिंग इकोनॉमी है, वर्ल्ड लीडर बनने जा रहा है, इसलिए क्योंकि हमने 70 साल यहां पे हमने हुकूमत की। हमने इस मुल्क को प्यार मोहब्बत का एक गहवारा बनाया, एक चमन बचकर बनाकर इसको सींचा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई प्यार मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, भाईचारे के साथ जो जिंदगी बसर कर सकते थे, एक ऐसा मुल्क बनाकर रखा। हमने इन 10 सालों में जो राजा महाराजाओं को पेंशन दिया करते थे, प्रोविपर्स, उसको खारिज करके इस देश की, इस आवाम को, गरीब आवाम को पेंशन देने का काम किया। हमने इन 10 सालों में जो ये मुल्क की दौलत बड़े बड़े जो पूंजीपति, उद्योगपति, कारपोरेट के हाथों जाने वाली थी, उसको निकाल करके इन लोगों को, गरीबों को बांटने का काम किया। हमने 10 सालों में जितनी यूनिवर्सिटी बनी कांग्रेस पार्टी ने बनाई, जितनी स्कूलें बनाई कांग्रेस पार्टी ने बनाई, जितने डैम्स बने कांग्रेस पार्टी ने बनाई, जितने रेलवे स्टेशन बने कांग्रेस पार्टी ने बनाई, जितने एयरपोर्ट बने कांग्रेस पार्टी ने बनाई, जितने हाईवे बने कांग्रेस पार्टी ने बनाई। आपने 10 सालों में क्या किया? आपने 10 सालों में सिर्फ इस समाज को तोड़ने का काम किया। आपने 10 सालों में लोगों से झूठ बोला, फरेब किया। अभी जमीर अहमद खान साहब बोल रहे थे 2019 का इलेक्शन में हारा हूं। हाँ, जरूर हारा हूं। किस लिए हारा हूं? क्योंकि मोदी जी का झूठ, मोदी जी का फरेब, मोदी जी ने लोगों से जितना झूठ बोला आज तक हिंदुस्तान के किसी वजीर आजम ने नहीं बोला। आज तक हिंदुस्तान के वजीर आजम किसी ने नहीं बोला। अरे 10 साल में आपने क्या किया? इस सवाल का आपके पास जवाब नहीं है। आपने राजस्थान में कहा है कि सारी दौलत कांग्रेस पार्टी निकाल करके मुसलमानों को दे देगी। अरे कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी क्रिश्चियनों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी सिखों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी दलितों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर एक फर्द की पार्टी है। जिसके दिल में हिंदुस्तान, जिसके दिल में भारत, जिसके दिल में इंडिया होता है, हर उस वफादार हिंदुस्तानी की पार्टी कांग्रेस पार्टी है। मैं सोचता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को
क्या शर्म नहीं आई होगी जब उन्होंने राजस्थान में ये कहा? क्या आपको तान में जब उन्होंने कहा तो मैं कभी सोचता हूं कि क्या उनको शर्म नहीं आई ऐसी बात कहते हुए? क्योंकि उन्होंने ही कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज आपने देखा इस मुल्क की गरीब आवाम आपके खिलाफ वोट डाल रही है, बीजेपी को हराना चाहती है। उस आवाम में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर के, आज पूरी आवाम मिलकर के हिंदुस्तान की आवाम बीजेपी को हराना चाहती है। जैसा आपने देखा पहले चरण की पोलिंग, पहले फेज की पोलिंग जैसे ही हुई, उसमें आपको पता चल गया कि आप हारने वाले हो। तो आपने क्या किया? आपने हिंदू मुसलमान पहले से फिर से शुरू कर दिया। आज मैं अपील करना चाहता हूं, शिवाजी नगर एक ऐसा इलाका है जहां पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। यहाँ पे सब लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। यहाँ पे 250 साल की अगर एक चर्च है तो यहाँ 200 साल का एक की दरगाह भी है, 200 साल की मस्जिद भी है, 1500 साल की एक मंदिर भी है। यहाँ पे मुसलमान मंदिर को देखकर उसकी इज्जत करता है, एक हिंदू मस्जिद को देखकर उसकी इज्जत करते हैं। हिंदू मुसलमान सब मिलकर चर्च की इज्जत करते हैं। यही हिंदुस्तान है, शिवाजी नगर ही हिंदुस्तान है। अगर शिवाजी नगर को हिंदुस्तान में जो माहौल बना है उससे बचाकर रखना है और शिवाजी नगर का माहौल पूरे हिंदुस्तान में फैलाना है, तो प्यारे माँ बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं। और कोई ऐसा लीडर नहीं है जो खड़े होकर के इस नफरत की सियासत को खत्म कर सके, खड़े होकर के इनके झूठ को, इनके फरेब को खत्म कर सके। अगर वो कर सकता है तो सिर्फ राहुल गांधी कर सकता है। आपको राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करना है। आप राहुल गांधी के हाथ कैसे मजबूत करेंगे? जब आप मंसूर अली खान को वोट देंगे, आप कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे को वोट देंगे। जब आप हाथ के पंजे को वोट देंगे तब आप समझ जाइए हिंदुस्तान की आवाम जो परेशान है, भूखमरी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, नौजवान जिनके हाथों को काम नहीं है, किसान जो आज बिल्कुल आंख से आंसू निकालने के भी लायक नहीं रहे। इसलिए नहीं रहे क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी अदानी और अंबानी की गुलामी करते हैं। आज गरीब आवाम को इन्होंने सड़कों पे छोड़ दिया है कि तुम्हारी जिंदगी तुम खुद जी लो। तो आज कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत, जनाब सिद्धरामैया की हुकूमत आ गई, इसलिए गरीब आवाम बच गई। अगर आप जान लीजिए यहां पे भी अगर कांग्रेस नहीं आती तो गरीब कहां जाते? आज हम हर घर को 2000 रुपए पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारी बहन जो भी हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी निकले, हाथ बताए बस रुकेगी। उसमें आप बीदर से लेकर चामराजनगर तक फ्री जा सकते हैं। आज कर्नाटक रियासत की कोई भी किसी भी घर में 1 रुपया इलेक्ट्रिसिटी बिल का नहीं देना पड़ता। नौजवान जिसके हाथ को काम नहीं है उसको स्टाइफंड देने का काम हम कर रहे हैं। जिसके घर में अनाज नहीं है हर सर को 10 किलो अनाज देने का काम कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कर रही है। किस लिए कर रही है? कि हिंदुस्तान सबका है, सिर्फ अमीरों का हिंदुस्तान नहीं है। जिनकी गुलामी बीजेपी करते हैं सिर्फ उनका हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान किसी का है तो गरीब आवाम का है। गरीब आवाम, गरीबों के घर को अगर आप जाकर देखें, उनकी तकलीफ जो है आज बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो इसलिए मैं आप सबसे अदबन गुजारिश कर रहा हूं, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೈ ಮುಗ್ದು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಯುವಕ, ಒಬ್ಬ ಯುವ ನಾಯಕ, ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವ ನಾಯಕ, 9 ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 25,000 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಅವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸಿದಂಗೆ. ಅವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಶಿವಾಜಿನಗರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶಿವಾಜಿನಗರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ डेवलपमेंट ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, आज जितना भी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं मेरे अकेले कंधों पर इसका बोझ उठाकर बहुत देर तक हम नहीं चल सकते। अगर आपने मंसूर को वोट दिया और वो एमपी बने तो हमारे साथ खड़े होकर हमारा बोझ वो भी साथ उठा करके शिवाजी नगर की तरक्की, बेंडूल सेंट्रल की तरक्की, हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार जो प्यार मोहब्बत फैलाए, उन प्रीति विश्वास बांधव्यದ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತವಾದಂತ ಸರ್ಕಾರ, ಪೂಂಜಿಪತಿಗಳಿದ
ಪೂಂಜಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇಳಿಸಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸೋಣ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸೋಣ, ಬನ್ನಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈ ಮುಗಿದು 1ನೇ ನಂಬರ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಹಸ್ತದ ಗುರುತಿಗೆ तम मतों ಕೊಡಬೇಕು। मंसूर अली खान को आप जिताइए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए। यहाँ की चांदनी चौक से जो आवाज जाएगी लाल किले तक जानी चाहिए। ये आप सब मिलकर काम करिए और आने वाले दिनों में एक मोहब्बत फैलाने वालों की हुकूमत, नफरत फैलाने वालों का खात्मा कर मंसूर अली खान और कांग्रेस पार्टी को जिताइए। शुक्रिया। जय हिंद, जय कर्नाटक। ನಾನು ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ನಿಮ್ಮ कांग्रेस अभ्यर्थी बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। मेरी आज मुझे यहाँ पर चौक पे खड़ के ये महसूस हो रहा है कि मेरे जिम्मेदारी क्या है और कांग्रेस पार्टी से मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ ये ऐसी पार्टी है जो अब एक ऐसा समय आ गया है कि देश में हमारा वजूद क्या है इस पे हम लोगों को गौर करना है। और मैं शुरू करता हूं। हमारे पॉलिटिकल मेंटर श्री सुरजेवाला साहब यहाँ आए हैं, रहमान खान साहब, जमीर अहमद खान साहब, रिजवान अरशद साहब, नसीर साहब और स्टेज पे जो सब लोग आए हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे ये बैंगलोर सेंट्रल सीट लड़ने के लिए दिए हैं, क्योंकि वक्त का तकाजा है। सुरजेवाला साहब भी अभी बात करने का है। मेरी एक ही अपील आप सब लोगों से है, मुझे आप अपना वोट दीजिए। मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं आपकी उम्मीदों को खरा उतरूंगा। मैं हमारे लीडर्स जमीर भाई, रिजवान भाई, हारिस भाई, सलीम भाई, नसीर भाई सबके साथ कंधे से कंधा मिला के हिंदुस्तान का संविधान बचाने के लिए और हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी बचाने के लिए और बैंगलोर के डेवलपमेंट के लिए, कर्नाटका के डेवलपमेंट के लिए आप सबके साथ मिलकर काम करूंगा। आप मुझे आपका ताउन दीजिए, आपका साथ दीजिए। और आप देख रहे हैं राहुल गांधी जी जो कश्मर जो जद्दोजहद कर रहे हैं हिंदुस्तान का संविधान बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, मैं भी आप सबसे अपील करता हूं। ये मैं मंसूर अली खान, मेरा इलेक्शन है, आप सब लोग मंसूर अली खान हैं। आप अगर मदद करें तो मंसूर जीत सकती है, कांग्रेस जीत सकती है, हिंदुस्तान जीत सकता है। सो मैं ये अपील करता हूं आप लोगों से, मेरा सीरियल नंबर 1 है, मैं मंसूर अली खान हूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट। आप सब लोग 26 तारीख को अल्लाह का वास्ता देता हूं, भगवान का वास्ता देता हूं, ईश्वर का वास्ता देता हूं, जीसस का वास्ता देता हूं, आपका मतदान जाके पूरी भारी बहुमत में वोट करें। ये कहते हुए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो बेंगलोर का दिल है और इस दिल को मेरा नमस्कार, आप सबको भी मेरा नमस्कार। आदरणीय रहमान खान साहब, मेरे भाई और साथी, कर्नाटक सरकार में मंत्री जमीर अहमद जी, आज की इस जंग के हीरो, वो नौजवान जो अपने मन में, अपनी रगों में केवल बेंगलोर सेंट्रल नहीं, पूरे देश में डेमोक्रेसी की हिफाजत का जज्बा लिए, संविधान की हिफाजत का जज्बा लिए, आपका बेटा मंसूर अली खान, जो हमारे उम्मीदवार भी, एआईसीसी सेक्रेटरी अभिषेक दत्त जी, सलीम अहमद जी, वो नौजवान जो मेरे छोटे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, आपके अजीज भी हैं और आपके नुमाइंदे भी हैं, रिजवान अरशद साहब, एन ए हैरिस जी, अब्दुल जब्बार साहब,
नागार्जुन यादव जी, सूरज हेगड़े जी, नजीर साहब, सुधेंद्रा जी, हमारे भतीजे मोहम्मद नलपाड़ जी, कृष्णप्पा साहब, सईद साहब, नायडू जी, मंच पर विराजमान और मेरे सामने बैठे सब बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों, माताओं, बहनों, हिंदुस्तान का ये चुनाव केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच का चुनाव नहीं, हिंदुस्तान का ये चुनाव दो राजनीतिक दलों के बीच का चुनाव भी नहीं, हिंदुस्तान का ये चुनाव केवल दिल्ली की सरकार बनाने का चुनाव भी नहीं, हिंदुस्तान का चुनाव केवल नई हुकूमत चुनने का चुनाव भी नहीं। तो आप कहेंगे भैया फिर ये क्या है? ये चुनाव है इस देश के संविधान को बचाने का, ये चुनाव है चांदनी चौक जैसी गंगा जमुनी तहजीब की इस धरती को आगे बढ़ाने का, ये चुनाव है इंसानियत को जिंदा रखने का, ये चुनाव है मेरे, आपके और हमारी अगली पीढ़ियों की बेहतरीन जिंदगी के निर्माण का। दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, 75 वर्ष में पहली बार एक ऐसी सरकार दिल्ली की सत्ता पर बैठी है जिसने हिंदुस्तान के लोगों पर हमला बोल रखा। 75 साल में पहली बार एक ऐसी सरकार दिल्ली की सत्ता पर काबिज है जिसने हिंदुस्तान के संविधान को मिटाने की साजिश रच रखी है। क्या यह सही नहीं कि कर्नाटक में हेगड़े जी ये कहते हैं कि हम संविधान को खत्म कर देंगे? बीजेपी के एक और नेता उत्तर प्रदेश में अरुण गोविल और लल्लू जी कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के संविधान को खत्म कर देंगे। बीजेपी की और एक और नेत्री राजस्थान में ज्योति मिर्धा खुलेआम ये बयान देती है कि हम हिंदुस्तान के संविधान को खत्म कर देंगे। मोदी जी, हिंदुस्तान का संविधान तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक हमारी रगों में एक भी खून का कतरा बचा हुआ। ये गलत फहमी मत रखिएगा। ये संविधान बाबा साहब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और करोड़ों हिंदुस्तानियों ने जेलें काटकर, फांसी के फंदे चूमकर, फिरंगियों से लड़ाई लड़कर हिंदुस्तान के लोगों को अधिकार देने के लिए बनाया था। ये एक जिंदा चीज है और इस जिंदा चीज का कोई कत्ल नहीं कर सकता। किसी के पास इतनी ताकत नहीं। दोस्तों, साथियों, ये वो लोग हैं जो 10 साल पहले जब सत्ता में आए तो क्या कहा करते थे? सबको 15-15 लाख जमा कराएंगे, युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर देंगे, 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, हर गरीब के घर पर एक छत दे देंगे और ना जाने क्या क्या। सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की वजह से आज राजनीतिक लोगों से इस देश के लोगों का विश्वास उठ गया। आज इस देश में 2 मॉडल हैं। एक है कांग्रेस पार्टी का गारंटी मॉडल, वो गारंटी मॉडल जो कर्नाटक में आपने लागू करके दिखाया, और एक है मोदी जी का चोंबू मॉडल। ये मोदी जी का मॉडल, एक है मोदी जी का चोंबू मॉडल। फैसला आपको करना है। याद करिए, कर्नाटक की विधानसभा की चुनाव से पहले जब सिद्धारमैया जी, डीके शिव कुमार जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी
और हम सब 5 गारंटी लेकर आए थे तो ये लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे। ये लोग कर्नाटक का मजाक उड़ाया करते थे। नरेंद्र मोदी जी आए और बोले कभी ये गारंटी लागू नहीं हो सकती। आज मैं हिंदुस्तान का एक नौजवान देश के प्रधानमंत्री से सवाल करता हूं चांदनी चौक पर खड़ा होकर, अगर कांग्रेस गारंटी लागू नहीं कर सकती थी मोदी जी, तो अब हमारा गारंटी का शब्द क्यों चुरा रखा है? अब हमारा गारंटी का शब्द चोरी करने की नौबत क्यों आ गई? कांग्रेस ने जो कहा वो कर्नाटक में करके दिखाया। आज 1 करोड़ 25 लाख हमारी बेटियों, हमारी माताओं, हमारी बहनों को हर महीने कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार 2000 रुपया उनके बैंक खाते में जमा करवाती है, गृह लक्ष्मी का। कांग्रेस ने कहा गृह ज्योति का 200 यूनिट करंट माफ होगा, तो आज 1 करोड़ 18 लाख कर्नाटक के घरों को मुफ्त 200 यूनिट करंट कांग्रेस की सरकार हर महीने देती है। कांग्रेस ने कहा अन्न भाग्य में कर्नाटक के लोगों को 10 किलो मुफ्त चावल मिलेगा, तो आज 4 करोड़ 49 लाख लोगों को हर महीने उस चावल के एवज में कांग्रेस की सरकार पैसा जमा करवाती। कांग्रेस ने अगर गारंटी दी शक्ति की कि हमारी बेटियों, महिलाओं, माताओं उनका कहीं से कहीं जाएं, बस के अंदर फ्री ट्रेवल होगा, फ्री बस ट्रेवल कर सकेगी, तो 35 लाख कर्नाटक की महिलाएं हर रोज रोडवेज की बसों में फ्री ट्रेवल करती। कल शाम तक पिछले 10 महीने में 195 करोड़ फ्री बस ट्रिप्स हो चुकी। ये कांग्रेस ने करके दिखाया। अगर कांग्रेस ने कहा नौजवानों को युवा निधि देंगे, हर महीने 3 साल तक ग्रेजुएट्स को 3000 रुपया महीना, डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपया महीना देंगे, तो 1,50,000 हमारे बच्चों को आज ये मिलता है। मैं आपसे आज वादा करता हूं चांदनी चौक पे बच्चे एनरोल कर रहे हैं हर रोज, हर जाति और हर धर्म के बच्चे एनरोल कर रहे हैं, गरीब और अमीर के, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के भी, पर लिंगायत, वोकालिगा, हर समाज के लोग। अगले 2, 3, 4 साल के अंदर मैं पूछ रहा था जमीर भाई से, ये संख्या सिद्धारमैया जी से, ये संख्या बढ़कर 10 लाख तक शायद हो जाएगी। ये कांग्रेस की गारंटी है। हमने जो वचन दिया वो करके दिखाया। इसके बाद हमने बैठकर चर्चा की, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, सोनिया गांधी जी ने, चिदम्बरम जी ने, हम सब ने, और हम अब देश में कांग्रेस की 5 गारंटी लेकर आए, जिनकी चर्चा आज इस मंच से मैं करना चाहूंगा। 4 जून के बाद कांग्रेस की सरकार जब दिल्ली में बनेगी, तो पहली गारंटी है महालक्ष्मी। इस देश की हर गरीब महिला को जात और धर्म ना देखकर 8,300 रुपया हर महीने हम हमारी बहनों, माताओं के खाते में जमा करवाएंगे। कर्नाटक में यह डबल फायदा है। 2,000 रुपया आप लोग देंगे और 8,300 रुपया ये नौजवान लेकर आएगा। 10,300 रुपया हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, हमारी बेटियों को मिलेगा। ये महालक्ष्मी की गारंटी है। कांग्रेस की दूसरी गारंटी है नौजवानों को। राहुल गांधी जी को ये चिंता है। मोदी जी ने तो कह दिया 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 20 करोड़ रोजगार कहां देने थे, वो सब जुमले निकले। पर सच्चाई ये है कि हमारे बच्चों को रोजगार देने की जरूरत है, वो किसी भी जात और धर्म से हो। तो इसलिए हमने एक नई स्कीम लेकर आए, उसे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कहते हैं। हर साल 1 लाख रुपया उसमें मिलेगा। कैसे? मुझे मिठाई घर के अंदर काम करना है, अगर आज मैं वहां काम मांगने जाऊं तो वो कहेंगे भैया आपको मिठाई बनानी आती है? मैं कहूंगा नहीं, तो बोले हम नहीं रखेंगे, हम क्यों पैसा खराब करें। चाहे वो IT का सेक्टर हो, चाहे वो कोडिंग सीखने की बात हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, हमारे बच्चे उनमें काम करेंगे। अब मैं अगर कल जाकर मिठाई घर को ये कहूं, मैं लस्सी जूस वाली दुकान पर जाके कहूं मेरे 5 बच्चों को रखिए, आपको पैसा नहीं देना, इनको केवल ट्रेन करिए, तो कहेगा अच्छा मुझे मुफ्त में मिल रहे हैं। पैसा दिल्ली की सरकार देगी,
मंसूर अली खान लेकर आएगा 8,300 रुपया महीना, हम हमारे बच्चों को 2 साल तक देंगे, 1 लाख रुपया हर साल देंगे, ताकि 2 साल के बाद जब वो काम सीखकर सड़क पर आए तो वो अपने पांव पर खड़े होने के काबिल हो। ये दूसरी गारंटी। तीसरी गारंटी है हेल्थ की गारंटी। आज अगर किसी के घर में कोई बीमार हो जाए तो अगर वो मिडिल क्लास नौकरी पेशा है तो इतना खर्चा अस्पताल का है कि वो गरीब हो जाएगा, और गरीब है तो कर्जदार हो जाएगा। 25 लाख रुपया हर परिवार को फ्री इंश्योरेंस कवर दिल्ली की कांग्रेस की सरकार देगी 4 जून के बाद। आप सबको एक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड देंगे। खुदा ना करे, ईश्वर ना करे, किसी के घर में कैंसर आ जाए गलती से, किसी के घर में कोई हार्ट अटैक आ जाए, किसी की किडनी लीवर खराब हो जाए, किसी के फेफड़े में समस्या हो, किसी के माँ बाप का कुल्ला या गोडा बदलवाना है, तो आपको कोई भी बीमारी है, आप किसी अस्पताल में जाइए, वो कार्ड दीजिए, 25 लाख तक इलाज हर साल मुफ्त, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं। दिल्ली से मंसूर अली खान ये सुनिश्चित करेंगे, ये पैसा लाया करेंगे। चौथी गारंटी है कर्नाटक और देश के किसान से। पहले भी सरदार मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी ने 72,000 करोड़ किसान का माफ किया था। मोदी जी ने 16 लाख करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो माफ किया, पर मैंने सवाल पूछा देश की संसद में, बोले किसान का कर्जा माफ नहीं कर सकते, पैसा नहीं है। अब आपका समय चला गया, 10 साल गए। अब कांग्रेस की अगली सरकार की गारंटी है कि इस देश के किसान का जो 3-3.5 लाख करोड़ रुपया बकाया है उसके सर पे, वो सारा का सारा हम माफ करेंगे और एमएसपी का कानून बनाएंगे। ये चौथी गारंटी। और 5वीं गारंटी है गरीब मजदूर को, साधारण व्यक्तियों को। अभी 180 रुपया मनरेगा का पैसा भारत सरकार देती है हर रोज, 130 रुपया कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में डालती, तो मनरेगा की गांव में मजदूरी है 320 रुपया, 330 रुपया हर रोज। इसे बदलना है, क्योंकि 330 में गुजारा नहीं चलता। 180 रुपया की जगह कांग्रेस की अगली सरकार 400 रुपया हर रोज देगी। 130 रुपया कर्नाटक की सरकार देगी, 530 रुपया मनरेगा की मजदूरी होगी। चांदनी चौक पे सब साथी कहेंगे हमें क्या फायदा है, हम तो शहर में रहते हैं, ये तो गांव के लोगों के लिए है। तो इसलिए हमने ये फैसला भी किया है, वो सारे गरीब जो शहरों में रहते हैं, वो बेंगलोर हो या दिल्ली हो, वो कलकत्ता हो या गुवाहाटी हो, वो अहमदाबाद हो या बंबई हो, एक एमजी नरेगा शहर के लिए भी बनाएंगे और उसे भी इसी मजदूरी पर लागू करेंगे, ताकि कोई गरीब भूखे पेट ना सोए। ये कांग्रेस है साथियों, ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस का तरक्की का मॉडल है। और दूसरी तरफ ये वाला मॉडल है, कहां गया, गुम हो गया था, ये वाला मॉडल चोंबू मॉडल, काली चोंबू। जब कर्नाटक के किसान के लिए 18,172 करोड़ रुपया मांगता है, जो हमारा अधिकार है, तो मोदी जी कहते हैं चोंबू ले लो। जब कर्नाटक 58,000 करोड़ रुपया मांगता है 15वें फाइनेंस कमीशन का, तो मोदी जी कहते हैं कर्नाटक को चोंबू ले लो। जब कर्नाटक भद्रा डैम का 6,000 करोड़ मांगता है, तो मोदी जी कहते हैं चोंबू ले लो। जब कर्नाटक ये कहता है कि हम सबसे तरक्की पसंद प्रांत हैं, 100 रुपया टैक्स का जो हम देते हैं, भारत सरकार केवल 13 रुपया वापस देती है, ये अन्याय क्यों, तो मोदी जी कहते हैं चोंबू ले लो। जब कर्नाटक ये कहता है कि कर्नाटक के अधिकार पेरिफेरल बेंगलुरु रोड के 25,000 करोड़ देने होंगे, लेक डेवलपमेंट का पैसा देना होगा जो हमारा पैसा है, तो मोदी जी और बीजेपी कहती है आप चोंबू ले लो। ये 2 बार के जो यहां से एमपी है ना, ये वो कहते हैं। जब नौजवान ये कहते हैं 2 करोड़ रोजगार दो, तो मोदी जी कहते हैं चोंबू ले लो। जब 15-15 लाख हर खाते में क्यों नहीं आए, ये सवाल किया जाता है, तो मोदी जी कहते हैं चोंबू ले लो। तो साथियों, अब उन्हें रिटर्न गिफ्ट दे ही दो इस बार, ये खाली चोंबू की रिटर्न गिफ्ट दे ही डालिए, क्योंकि दोस्तों साथियों, ये चुनाव अकेले मंसूर अली खान या रिजवान अरशद का नहीं, ये चुनाव
इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। और 4 लाइन आपको बताना चाहूंगा। किसी दोस्त ने मुझे बताई, कहा कि सहमा सा है वतन के कुछ लोग खून मांगते हैं। ये दिल्ली की सल्तनत के लिए जो आज लोग बैठे हैं, सहमा सा है वतन के कुछ लोग खून मांगते हैं, कुछ लोग मुझसे मेरे हिंदुस्तानी होने का वजूद मांगते हैं। सहमा सा है वतन के कुछ लोग खून मांगते हैं और कुछ लोग मुझसे मेरे हिंदुस्तानी होने का वजूद मांगते हैं। जमाना बीता है, जमाना बीता है जिनका फिरंगियों की मुखबरी में, जमाना बीता है जिनका फिरंगियों की मुखबरी में, वो आज मुझसे मेरे देशभक्त होने का सबूत मांगते हैं। वो सबूत क्या है? वो सबूत है वोट की चोट। एक एक वोट जो आप कांग्रेस और मंसूर अली खान को देंगे, वो एक मजबूत भारत का निर्माण करेगा। राहुल गांधी जी, खड़गे जी के, सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार जी के नेतृत्व में। इसलिए मंदिर, मस्जिद और हमारी जो चर्च है, उसके इस बेहतरीन गंगा जमनी तहजीब के चांदनी चौक में आइए एक संकल्प ले लें कि अब की बार मंसूर अली खान संसद के अंदर बिठा के उनको रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद।